get introduced. Chemical kinetics is the study of the rate at which the chemical reaction occur. By the word rate means the speed of chemical reaction or the velocity with which the chemical reaction proceed. Enzyme kinetics is a branch of chemical kinetics that studies the rate of chemical reaction that are catalyzed by the enzyme. It only deals with enzyme catalyzed reaction. Significance behind the chemical kinetics or enzyme kinetics is to understand the reaction mechanism. It is very important to understand the reaction mechanism because there are several factors which affects the rate of chemical reaction. In order to complete the reaction, we must need to understand it completely. Enzyme kinetics tell how an enzyme catalyzes the reaction. As we know that there are thousands of enzymes present in the living body that catalyzes all the metabolic reaction in each and every steps. How these enzymes are controlled within the cell and how their activities are blocked by some poison or inhibitors. In order to understand their activity and their inhibition, we need to understand the reaction mechanism. Therefore, chemical kinetics is very important. The next is there are some terms that are used in chemical kinetics. These are elementary reaction. Elementary reaction is a stoichiometric equation between the reactant and the product. As we see here, A is converted into B, where A is the reactant and B is the product. The reaction looks simple, but it's not actually. There are several steps. For example, a reaction consist of reactant. These reactant react together and form intermediate. These intermediate are then converted into the product. If we look at the second equation, it shows that A is converted to I1 and then I1 converted to I2, which is finally converted into product B, where I1 and I2 are the intermediate in the reactions. The next is rate equation. Rate equation is actually equation which is used to express the rate of chemical reaction. Rate of chemical reaction is the sum of reactant raised to the power their coefficient, where k is the proportionality constant. The next is order of a chemical reaction. Order of a chemical reaction. The order of chemical reaction may be first order, second order, third molecular order, or zero order. A reaction is said to be first order reaction if it is the rate constant depends on the concentration of one reactant only, or one reactant is involved in the reaction. It is also known as unimolecular reaction. The second order reaction in which the rate of reaction depends on the concentration of the two reactant. Second order reaction is also known as bimolecular reaction. Third molecular reaction is the term used for third, fourth, or higher order reaction. There is another zero order reaction. Zero order reaction means the rate is independent of the concentration of the reactants. It means that rate of the reaction does not depend on the concentration of the reactants. Let's come to the topic. Enzyme kinetics divided into two categories. The first is single substrate reaction and the second is multi-substrate reaction. Single substrate reaction is the study of enzyme that only bind one substrate reaction. It means that enzyme only binds to the single substrate. To measure the affinity with which the enzyme binds to the substrate and turnover rate is studies in single substrate reaction. The second term is multi-substrate, as the word indicates that there are more than one substrate involved in the reaction. Enzyme catalyzes reactions are saturable. It means that the concentration of the enzyme does not show a linear response to increase in the substrate concentration. Single substrate reaction. If we look at the equation, it is the representation of a single substrate reaction where E is the enzyme and S is the substrate. Here we see that E plus S give us ES, where ES is enzyme substrate complex, and then ES converted to product and free enzyme. This enzyme is now available for other or further reactions. If we look at the first step, E plus S converted into ES,
This is an initial biomolecular reaction between the enzyme and the substrate. The enzyme binds to the substrate through its active site and converted into enzyme substrate, which is the first product, or we can call it as intermediate. In the second step, there is typically one enzymatic step that allow the reaction to convert to a single substrate reaction. Here K2 is the rate determining step. If we look at the equation, K1 proceed in two directions, forward as well as in backward direction, while K2 only proceed in forward direction. Step 2 is also known as catalytic step. हेनरी माइकल्स मेंटन इक्वेशन जो है यूज़ की जाती है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द velocity or the rate of single substrate reaction. Study of kinetics was began in 1902. ये स्टडी कैसे स्टार्ट हुई थी? when Brown reported the rate of hydrolysis of sucrose. अब rate of hydrolysis of sucrose को catalyze किया जाता है by using enzyme yeast enzyme invertase. ठीक है, ये catalyze करती है rate of hydrolysis of sucrose को. ये जो स्टडी थी ब्राउन की, इसने इसको क्या नाम दिया था? रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. अब जब इनिशियल वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के जितनी एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग थी उनको इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया था, तो हमारे पास जो ग्राफ की शेप आई थी वो उसको था हाइपरबोलिक. ठीक है, हाइपरबोला मतलब कि इस तरह का ग्राफ आया था. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो थी और आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज़ होती है ये. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हाइपरबोला कर्व है. ठीक है, यहाँ ये कैसे ड्रॉ किया गया है? यहाँ पे हम लोगों ने अलोंग एक्स एक्सिस हम लोगों ने लिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट को, एंड वी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज जीरो. एज द रिएक्शन स्टार्ट्स the concentration of the substrate increases. ठीक है, the concentration of the substrate increases in V naught also increases, but after a point V naught is not increases while the concentration of the reaction still increases. ठीक है, अब जब concentration of the reaction increase हो रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि enzyme becomes saturated to its सबस्ट्रेट. मतलब क्या है कि एंजाइम सेचुरेट हो गई है सबस्ट्रेट के साथ, और इसको हम क्या कहते हैं? वी मैक्स. वी मैक्स इज एक्चुअली द पॉइंट व्हेन वेयर द एंजाइम बिकम सेचुरेटेड टू इट्स सबस्ट्रेट. ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो हाफ ऑफ वी मैक्स, और यहाँ पे हम देखें तो ये इज इक्वल टू के एम. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है माइकल्स मेंटन इक्वेशन जो है बेस करती है टू अजम्पशन पे. ठीक है, द फर्स्ट अजम्पशन इज नोन एज अजम्पशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अजम्पशन ऑफ इक्विलिब्रियम नाम से शो हो रहा है कि इट इज़ अबाउट द इक्विलिब्रियम. अब इसमें क्या क्या कहा गया है कि K-1 विच इज़ द रेट ऑफ इनवर्स रिएक्शन इज लेस देन द रेट ऑफ K2. ठीक है, अब जो इक्वेशन हमारे पास फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आई थी वहाँ पे भी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि K-1 इज़ द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ये जो रेट है ये ग्रेटर देन द रेट K2. ठीक है, इसको हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे. एजम्पशन ऑफ इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है जो आप लोगों को ज़हन नहीं डराइव करवाएगी. नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो है ब्रिग्स हेल्डन मॉडिफिकेशन टू द माइकल्स मेंटन इक्वेशन. माइकल्स मेंटन इक्वेशन जो है इसको इनवैलिड कहा गया था फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम. ठीक है, ये इसको इसकी जो एजम्पशन थी K-1 इज लेस देन के ग्रेटर देन K2. ठीक है, ये वाली एजम्पशन इसकी ठीक नहीं थी. ठीक है, और इसको फिर मॉडिफाई किया था ब्रिग्स एंड हेल्डन ने, और ब्रिग्स एंड हेल्डन की जो मॉडिफिकेशन थी इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट अजम्पशन. अब स्टेडी स्टेट इज द नेम गिवन टू द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म. ठीक है, अब कौन जो प्रोडक्ट बना था उसको कहा गया था स्टेडी स्टेट. अब स्टेडी स्टेट कौन सा प्रोडक्ट होता है? जिसका रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिग्रेडेशन. ठीक है, अब स्टेडी स्टेट अजम्पशन में ये बात की गई थी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देखा था कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा था. अब हम लोगों ने ये बात पहले भी की कि
जो कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है और एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। अब जब एंजाइम की कंसंट्रेशन कम है तो एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या है कि एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो क्या है, वेरी स्मॉल है एज कम्पेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में ये बात की गई है कि अब जब प्रोडक्ट नहीं बना तो एंजाइम सबस्ट्रेट जो है ये बना है, ठीक है। अब एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम क्या कह सकते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। अब जितनी एंजाइम अवेलेबल होगी उतना ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं विच चेंजेस बाय द निग्लेजिबल अमाउंट। अब जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, निग्लेजिबल है, ठीक है। और ये कब सिग्निफिकेंट होता है कि जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ enzyme substrate complex become equals to rate of degradation of enzyme substrate complex। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस्ड, इसको हम क्या कह देते हैं, ये है स्टेडी स्टेट प्रोडक्ट। स्टेडी स्टेट प्रोडक्ट जैसे हम पहले कह चुके हैं, द प्रोडक्ट whose रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द रैपिड रिएक्शन स्टडीज हैव शोन दैट स्टेडी स्टेट इज स्टैब्लिश विद इन मिली सेकेंड। स्टेडी स्टेट जो है फ़ौरन से स्टैब्लिश हो जाती है जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है और मेंटेन होती है, ठीक है। मेंटेन होने का मतलब क्या है कि जैसे प्रोडक्ट बनता है उसी के साथ रिवर्स रिएक्शन होता है और वो प्रोडक्ट जो है ब्रेकन डाउन हो जाता है, इसीलिए रिवर्स रिएक्शन बिकम सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें डिफरेंट, हम लोगों ने आगे टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हुई हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये रिएक्शन है जहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट band together form enzyme substrate complex which is converted into enzyme and the product। यहाँ पे जो है हम लोग different terms use कर रहे हैं according to steady state assumption। अब क्या है कि ES is the rate of और द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जितना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ES। और यूजिंग स्टेडी स्टेट अजम्पशन K1 इज इनटू ES इनटू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, द रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ES एट एनी टाइम, ठीक है। अब ES जो है हम लोगों ने कहा था जैसे बनेगा वैसे ही ब्रेक डाउन हो जाएगा क्योंकि ये एक स्टेडी स्टेट प्रोडक्ट है। अब जो रेट ऑफ ब्रेकन डाउन ऑफ स्टेडी स्टेट प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल है, K-1 इंटू ES प्लस K2। K2 इज द रेट रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और हमारे पास इक्वेशन आई है वो क्या है, K1 इंटू concentration of the enzyme into the substrate is equal to K-1 concentration of enzyme substrate complex plus K2 concentration of enzyme substrate complex is equal to concentration of enzyme substrate complex K-1 plus K2। हम लोगों ने सिंपली क्या किया कि वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को हम लोगों ने एक साइड पे कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे देखें, स्टेडी स्टेट अजम्पशन को अगर हम कंसिडर करें तो स्टेडी स्टेट अजम्पशन में क्या कहा था, द रेट ऑफ K1, रेट कांस्टेंट K1 इज इक्वल टू रेट K-1 प्लस K2, ठीक है। और दूसरी स्टेडी स्टेट अजम्पशन का पॉइंट क्या था, द टोटल अमाउंट ऑफ एंजाइम और द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम इज इक्वल टू एंजाइम कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम प्लस ES। ES is concentration of enzyme substrate complex and E is the concentration of free enzyme। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम, E इज इक्वल टू E टोटल माइनस ES, ठीक है। टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन में से हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन को माइनस कर दें तो हमारे पास फ्री एंजाइम की कंसंट्रेशन आ जाएगी। फ्री एंजाइम वो एंजाइम है जिसने अभी रिएक्ट नहीं किया सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, और प्रोडक्ट नहीं बनाया। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया, कांस्टेंट की वैल्यूज़ को हम लोगों ने एक साइड पे कर दिया है, ठीक है। और ये जो हमारे पास कांस्टेंट आए हैं K-1 प्लस K2
डिवाइडेड बाय K1। अब यहाँ पे K1 कैसे डिवाइड हुआ, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे देखें तो K1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और इक्वेशन की राइट साइड पे अगर दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करें तो जो मल्टीप्लाई होता है वो आके डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास 3 रेट कांस्टेंट आए हैं, ठीक है। इन 3 रेट कांस्टेंट को हम कहते हैं Km। Km क्या है, माइकल्स मेंटन कांस्टेंट। अब ये जो K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू Km। Km इज माइकल्स मेंटन कांस्टेंट। माइकल्स मेंटन कांस्टेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी डिस्कस्ड इट लेटर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम into total concentration of the substrate is equal to enzyme substrate complex into concentration of the substrate is equal to ES/Km। सिंपली हम लोगों ने इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर दिया है Km को, ठीक है। अब हम लोगों ने जो फाइंड करनी है वो हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसीलिए हमने इस इक्वेशन को जो है रीअरेंज किया और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन को जो है यहाँ पे लिख दिया और बाकी जो फैक्टर्स थे वो हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड कर दिए। अब हम लोगों ने ये बात पहले भी की थी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू V0 इज इक्वल टू K2 इंटू ES। ये जो है इक्विलिब्रियम अजम्पशन है, ठीक है। यहाँ K2 इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब अगर हम इस वैल्यू ES, यहाँ पे ये जो ES की वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इक्वेशन 3 में, इसको अगर हम पुट कर दें इस V0 वाली इक्वेशन में ES की जगह, तो हमारे पास क्या होगा कि K2 इंटू टोटल कंसनट्रेशन ऑफ द एंजाइम इंटू द सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले क्या कहा था कि V0 इज इक्वल टू V मैक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं इफ V0 विच इज़ इनिशियल velocity of the reaction become equals to the final velocity or become equals to V max, then क्या होगा कि total enzyme concentration is equal to enzyme substrate complex। मतलब जितनी enzyme available थी वो सारी क्या होगी, ये convert होगी ये किस में, enzyme substrate complex में, और उस point पे क्या हो जाता है कि V0 become equals to V max, ठीक है। अब हमारे पास जो फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन फिलहाल यहाँ पे आई है, ठीक, उसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारे पास फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आई है जहाँ पे हम लोगों ने वी मैक्स की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया। अब फाइनल फॉर्म इक्वेशन हमारे पास क्या है, V0 इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाई Km प्लस कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। यहाँ पे V0 जो है इनिशियल कंसनट्रेशन है, Km जो है माइकल्स मेंटन कांस्टेंट है, S जो है सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट है, और V मैक्स जो है मैक्सिमम वेलोसिटी है वेयर द एंजाइम बिकम सैचुरेटेड टू इट्स सबस्ट्रेट। इस इक्वेशन को हम कहते हैं माइकल्स मेंटन इक्वेशन। इस इक्वेशन को माइकल्स मेंटन इक्वेशन इसीलिए कहा गया है कि इसमें जो है कुछ भी चेंजेस नहीं आई हैं, सिर्फ डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट चेंज हुई है स्टेडी स्टेट अजम्पशन के बाद। अब Km की वैल्यू को हम लोग ग्राफ से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब Km द रीजन वेयर इनिशियल वेलोसिटी V0 बिकम इक्वल्स टू V मैक्स, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, और इसको हम Km कहते हैं, ठीक। और V0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ V मैक्स, मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी बिकम इक्वल्स टू हाफ ऑफ V मैक्स। नेक्स्ट हमारे पास है Km के कुछ केसेस हैं। अब हम लोगों ने क्या कहा कि Km डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और Km की कंसंट्रेशन एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करती हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंसिडर करते हैं इफ Km इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। अब कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और माइकल्स मेंटन कांस्टेंट की वैल्यू अगर इक्वल हो तो हमारे पास V0 बिकम इक्वल्स टू हाफ ऑफ V मैक्स, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो केस है वो क्या है, S कंसंट्रेशन लेस देन Km। अब जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है और Km हमारे पास ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, V को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब आपको पता है कि एक हमारे पास जो है
एक न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट है, दूसरा है डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में अगर छोटी चीज़ आए तो वो क्या हो जाती है, निग्लेजेबल होती है। यहाँ पे हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट को निगलेक्ट कर दिया है और हमारे पास वी नॉट बिकम इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई के एम। वी नॉट डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक। अब अगर यहाँ पे बी में हम देखें तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन वेरी मच ग्रेटर देन के एम। अब के एम की वैल्यू क्या है, कम है, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो डिनोमिनेटर में जब के एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा लो होगी तो उसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में हम लोगों ने के एम की वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया। सो वी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वी इज़ इक्वल टू वी मैक्स। अब ये जो एस नीचे भी सबस्ट्रेट था ऊपर भी सबस्ट्रेट था, इसको एक दूसरे को क्रॉस कर दिया और हमारे पास वी इज इक्वल टू वी मैक्स, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, बिकॉज द रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब यहाँ पे हमारे पास जो है, जब कंसंट्रेशन ऑफ द enzyme concentration of the substrate equals to the km, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, v नॉट इज इक्वल टू v मैक्स, ठीक है, हाफ ऑफ v मैक्स। यहाँ पे हम देखें, इफ ऑल द एंजाइम हैज स्मॉल वैल्यू ऑफ km, ठीक है। अगर एंजाइम्स के लिए, सारी एंजाइम में km की वैल्यू स्मॉल होगी तो क्या होगा कि दे अचीव कैटालिटिक एफिशिएंसी एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मैक्सिमल कैटालिटिक एफिशिएंसी का मतलब क्या है, एंजाइम जो है वो टोटल एफिशिएंट है और सारी एंजाइम ने वर्क कर लिया है। और ये कब पॉसिबल होता है, जब km की कंसंट्रेशन जो है वो स्मॉल होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि km, सिग्निफिकेंस ऑफ km हम लोग कर रहे थे, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ km, केएम क्या है, माइकल्स मेंटन कांस्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी कहा था। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्या किसको मेजर करता है, अफिनिटी ऑफ एंजाइम को। केएम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, ठीक है। इसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम का कहते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। अब केएम इज़ डायरेक्टली इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम अफिनिटी। एंजाइम अफिनिटी का मतलब क्या है कि अफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, ठीक है। इसका इन्वर्स रिलेशन है। अब जब एंजाइम के एम की वैल्यू ज़्यादा होगी तो अफिनिटी ऑफ एंजाइम क्या होगी, लो होगी, ठीक है। और लो के एम वैल्यू इंडिकेट्स हाई अफिनिटी, ठीक है। तो के एम की वैल्यू जितनी लो होगी उतनी ज़्यादा एंजाइम की अफिनिटी होगी और एज अ रिजल्ट उतनी ज़्यादा उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी होगी। अब के एम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। के एम जो है वो हर एंजाइम का डिफरेंट होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस के एम range the value of km range between 10 raised to the power minus 5 to 10 raised to the power minus 2 moles, ठीक है। It is to be noted that Km is not depend on the concentration of the enzyme. अब हम लोगों ने earlier discuss किया था Km depends on the concentration of the substrate but it does not depend on the concentration of the enzyme. जितना भी enzyme हो ये matter नहीं करता, Km की value depend करती है substrate पे। अब सेकंड बात की गई है कि Km की वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ Km वेरी विद इंक्रीज और डिक्रीज इन द pH एंड द टेम्परेचर। जैसे जैसे pH और टेम्परेचर चेंज होगा ऐसे ही Km की वैल्यू भी चेंज की होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड pH। नेक्स्ट हम देखें तो के कैट इज़ अनदर रेट कांस्टेंट, ठीक है। के कैट जो है रेट, अब हम लोगों ने पढ़ा था जब भी दो या दो से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं तो वहाँ पे एक जो है रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, ठीक है। रेट लिमिटिंग स्टेप एट द कैटालिटिक सैचुरेशन, ठीक है। अब के कैट जो है असल में रेट लिमिटिंग स्टेप है। यहाँ पे जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो कौन सा था, K2 था, ठीक है। K2 इज़ द रेट डिटर्मिनिंग एंड द रेट लिमिटिंग स्टेप। अब केट इज इक्वल टू K2, के कैट इज इक्वल टू वी मैक्स ओवर ई टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द
एंजाइम। अब के कैट किस पे डिपेंड करता है, वी मैक्सिमम पे और टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम पे डिपेंड करता है। के गेट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, ठीक है। इट हैज़ अ यूनिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पर सेकंड, इसका यूनिट है, डिपेंड करता है टाइम पे। के कैट को ही हम कहते हैं टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर क्या होता है, द इक्विवेलेंट नंबर to the number of the substrate molecule converted into product by the catalytic effect of enzyme। अब जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट जिनको एंजाइम जो है बाइंड करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, इसको हम क्या कहते हैं, टर्न ओवर नंबर, ठीक है। और टर्न ओवर नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है के केट से। अब जो एक इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट हम करते हैं, के कैट ओवर के एम, ठीक है। द रेशियो ऑफ के कैट ओवर के एम इज द मेजर ऑफ कैटालिटिक एफिशिएंसी। कैटालिटिक एफिशिएंसी का मतलब कि एंजाइम कितनी एफिशिएंट है, वो कितनी जल्दी कैटालिसिस कर ली है और कैटालाइज कितनी जल्दी कर सकती है रिएक्शन को, तो इसको हम कहते हैं कैटालिटिक एफिशिएंसी। कैटालिटिक एफिशिएंसी किसकी इक्वल होती है, कैटालिटिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू के कैट ओवर के एम। कैटालिटिक एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि इट इज़ द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज। जैसे के कैट न्यूमरेटर में है, के एम डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो न्यूमरेटर में जितना बड़ा होता है उतनी ज़्यादा के कैट कैटालिटिक एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो कैटालिटिक एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करती है, व्हेन द वैल्यू ऑफ के कैट इंक्रीजेस एंड के एम डिक्रीजेस, इंक्रीजेस द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम। तो एंजाइम जो है 100% एफिशिएंट हो, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि के कैट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो और के एम की वैल्यू लो हो। अब के कैट को क्यों मेजर किया जाता है, ये कैटालिटिक एफिशिएंसी क्यों ज़रूरी है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेजर द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट एंजाइम। इससे हम लोग डिफरेंट एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी को चेक करते हैं, मेटाबॉलिक रोल ऑफ एंजाइम्स को चेक करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स, डिफरेंट एंजाइम। यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम का मतलब है कि कौन सी एंजाइम कितना सबस्ट्रेट यूटिलाइज कर रही है और कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है। यहाँ से हम लोग जो है वो एंजाइम्स की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। अब बात करते हैं माइकल्स मेंटन इक्वेशन की। तो माइकल्स मेंटन इक्वेशन का अगर हम अजम्पशंस की बात करें तो दो अजम्पशंस हैं, जो एक इक्विलिब्रियम अजम्पशन है और दूसरी जो है स्टेडी स्टेट अजम्पशन है। ये दोनों अजम्पशन जो है इतनी वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं जी, एक तो ये इजीली ड्राइव कर लेते हैं इस इक्वेशन को। मतलब क्या है कि आपको सिंपली कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता, एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को आपने लेना है और आप सिंपली इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। और सेकंड इसके क्या है कि स्टेडी स्टेट अप्रोच जो है वो यील्ड करती है फाइनल इक्वेशन को, ठीक है। जो हम इक्विलिब्रियम अजम्पशन की और स्टेडी स्टेट इक्वेशन थी, उनकी फाइनल इक्वेशन सेम है, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ द और डेफिनेशन ऑफ द कांस्टेंट चेंज हो रही है, ठीक है। माइकल्स मेंटन इक्वेशन को हम इसीलिए भी नहीं यूज़ कर सकते कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट हम लोग ले रहे हैं। अब लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, इसीलिए हम लोग माइकल्स मेंटन इक्वेशन को इनवैलिड कहते हैं। As we discussed earlier, Michaels-Menten equation is not practically possible. अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं होती, बिकॉज वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इज़ नीडेड। अब जब बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो है रिएक्शन जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया तो ये जो है माइकल्स मेंटन इक्वेशन को इनवैलिड कहा गया और इसमें जो है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की गई। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन की थी लीन वीवर बर्ग ने। लीन वीवर बर्ग वाज टू साइंटिस्ट, दे इंट्रोड्यूस अ ट्रांसफॉर्मेशन टू माइकल्स मेंटन इक्वेशन। अब माइकल्स मेंटन इक्वेशन की हम बात करें तो वहाँ पे हम लोग के एम को और वी मैक्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसीलिए के एम और वी मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो एक ट्रांसफॉर्मेशन की गई थी उसको कहते हैं लीन वीवर बर्ग प्लॉट।
अब यहाँ पे हम देखें तो ये वही फाइनल फॉर्म ऑफ स्टेडी स्टेट अजम्पशन और माइकल्स मेंटन इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इस लीन वीवर वर्क को हम क्या कहते हैं, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। अब डबल रेसिप्रोकल प्लॉट में सिर्फ एक इसने जो है वो मॉडिफिकेशन की थी, और वो क्या किया था कि दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल ले लिया था, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या रेसिप्रोकल ले रहे हैं, 1/v0, ठीक है, वी नॉट का रेसिप्रोकल ले लिया 1/v0 इन द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था कि रेसिप्रोकल ऑफ S/v max इनटू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ले लिया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ v0 एंड हेयर द रेसिप्रोकल ऑफ S/v max ओवर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एज सिंप्लीफाइड एज। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाइड कर लें तो क्या है, वी मैक्स को हम लोग एक साइड पे कर लेंगे और जो दूसरे कांस्टेंट है उनको अलग कर देंगे, के एम ओवर वी मैक्स इनटू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ओवर वी मैक्स, ठीक है। यहाँ पे देखें तो एक रेसिप्रोकल लिया था इनिशियल वेलोसिटी का और दूसरा रेसिप्रोकल लिया है वी मैक्स का। So by taking these two common reciprocal on both side of equation, Michaelis-Menten equation transform into another equation which is known as Lineweaver-Burke equation. Lineweaver-Burke equation is important and it is practically possible because a large amount of substrate is not needed. लीन वीवर वर्क प्लॉट की हम बात करें तो लीन वीवर वर्क प्लॉट कैसे है कि ये एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, ठीक है। और इसका स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप इज इक्वल टू के एम ओवर वी मैक्स। के एम इज Michaelis-Menten constant and V max is the saturation of the enzyme। यहाँ पे हम लोगों ने जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को लिया हुआ है अगेंस्ट वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हाफ ऑफ द वेलोसिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड थी वहाँ पे हम लोगों ने उसकी कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया और उस हाफ को हम लोगों ने प्लॉट कर दिया अगेंस्ट हाफ ऑफ वी नॉट। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो है इस प्लॉट को कट करता है एट 2 पॉइंट्स, फर्स्ट इज हेयर एंड द सेकेंड इज हेयर। जहाँ पे फर्स्ट कट कर रहा है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, 1/v max, और जो दूसरा पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, 1/-km, ठीक है। और ये जो है लीन वीवर डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है, इसको डबल रेसिप्रोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीन वीवर वर्क कहा जाता है, ठीक है। इट हैज़ ग्रेट एडवांटेजेस, मोर एक्यूरेट, ठीक है। यहाँ से हम एक्यूरेटली वी मैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि हम लोगों ने स्टेडी स्टेट अजम्पशन में या फिर माइकल्स मेंटन इक्वेशन में हम सिर्फ जज करते हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग बहुत कम कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट ले रहे हैं, द डबल रेसिप्रोकल प्लॉट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इज़ वेरी यूजफुल because it measures the mechanism of enzyme, it measures the enzymatic mechanism and it also tells about the enzyme inhibition। अब ये enzyme inhibition को भी explain कर रहा है और enzyme mechanism को भी explain कर रहा है, इसीलिए लीन वीवर जो है वो important है।